السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ جی میں نے سن لی وہ آڈیو پوری۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایسا ہے مگر ان زکاتی مولویوں سے امید کیا رکھی جائے صاحب؟ زکاتی مولوی ایسا ہے، میں اپنے علاقے کی تقریباً 5 مسجدیں جو میرے مکان کے اطراف میں موجود ہیں اس میں یہ کام کر چکا ہوں اور ہو گیا ہے۔ اچھا جی، سہارنپور کے اندر ایسے علماء کے بیچ میں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جب فروغ دیں گے تو کامیابی اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ اخلاص کے ساتھ وہ تو اپنی کوشش کرتے ہیں۔ جی 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 قرآن میں ہے نا، ومن جاہد فانما یجاہد بنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ جی 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 جی، کوشش کرنے کا تو حکم ہے صاحب، کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بہت اہم ترین بڑا نازک مسئلہ ہے۔ یہ طریقہ جو رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کے پیچھے سب سے بڑی حکمت عملی یہی تھی کہ وقتاً فوقتاً امت مسلمہ کو بھٹکاؤ سے محفوظ رکھا جائے اور اس کو حسب ضرورت اس وقت کے حساب سے ان کی رہنمائی کی جاتی رہے اور مرکزیت قائم رہے کہ کوئی بھی اب یہ جو ان کی ویڈیو ہے جو آپ نے سنی نہیں ہوگی ابھی، جس سے میں نے سب لکھا ہے وہ بھی سننا آپ، وہ جو انہوں نے انسٹرکشن دی ہے کہ یہ بات وہاں بتا دیں مسجدوں میں۔ ارے بھائی، یہ کام آپ کو بہت پہلے سے کر کے رکھنا تھا کہ جتنی مساجد ہیں، چاہے وہ شیعہ حضرات کی ہوں چاہے سنیوں کی ہوں، اہل حدیث کی ہوں، جس کی بھی ہوں، وہاں کے منتظمین کے یا وہاں کے متولیان کے یا ان کے ائمہ مساجد کی ان کے پاس نمبر کی لسٹ محفوظ ہونی چاہیے کہ ایک ہی ٹائم میں وہ سب کو اطلاع کر دیں، مطلع فرما دیں کہ بھائی حالات کی بنا پر حکمت عملی یہ کرنی ہے، آپ کو اس طرح سے چلنا ہے۔ تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ ہے شریع کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے شاندار انتظام، کوشش ضروری ہے۔ ہاں، اتنا بہترین انتظام کر کے دے رکھا ہے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ قوم کے دل و دماغوں کے اوپر دنیا چھا چکی ہے۔ بے شک بے شک، اور اب حرام حلال بھی نہیں دیکھ رہے اب تو عام طریقے سے 100 میں سے 2%، 5% لوگ حلال حرام کی فکر کر رہے ہیں، حرام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی جی، مطلب یہ حرام کمائی، بالکل خالی حرام کمائی جیب میں ڈال کے حلال گوشت خریدنے جا رہا کہ حلال گوشت کیا کہاں ملتا ہے۔ یہ کس نے بتایا تھا؟ وہ کوئی بڑے آدمی نے بتایا تھا شاید۔ جی 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 جی، شاید شاہی امام پنجاب نے بتائی تھی بات کسی اور نے۔ ہاں 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 ہاں، بالکل بتائیے۔ ہاں، کسی بڑے اسکالر کی زبان سے نکلی تھی بات۔ جی 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 جی، میں تو آپ سے پیسہ حرام کا جیب میں ہے اور گوشت حلال لینے جا رہا ہے۔ چلو اس کو ڈلوا لیں گے چینل پہ، اسی طریقے سے بات کریں گے، چینل پہ ڈل جائے میڈیم طریقے سے۔ جی جی جی، تاکہ کسی کی ذات کو نشانہ بھی نہ بنایا جائے، نہیں تو عوام کیا الجھ جاتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، جنرل طریقے سے بات کی جائے، فکر انگیز بے شک ہمیشہ نہیں، بات تو ہمیشہ ہی ایسی کرنی چاہیے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 5 لاکھ لوگ کم بیش وہاں جمع ہونے والے ہیں لکھنؤ میں، 5 لاکھ لوگ یہ 6 دن بعد۔ اچھا، وہاں پر لکھنؤ میں 5 لاکھ جمع ہوں گے، 5 لاکھ سے تھوڑے کم میں جمع ہوں گے، اس لیے کانپور میں 10 لاکھ۔ اچھا، وہ سورت میں بھی لگ بھگ 4 یا 5 لاکھ جمع ہونے والے ہیں 6 دن بعد، 15 لاکھ۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کس مقصد سے؟ ابھی میں بتا رہا ہوں، تھوڑی دیر رکو۔ 20 لاکھ بمبئی میں جمع ہونے والے ہیں 6 دن بعد ہی۔ کتنے ہوگا؟ 40 لاکھ، اور لگ بھگ اتنے ہی 10 لاکھ کے قریب وہاں جمع ہونے والے ہیں یہ احمد آباد میں 50 لاکھ، اور 5 لاکھ بھوپال میں 55 لاکھ، اور 5 لاکھ کے قریب اندور میں 60، اور مدراس میں لگ بھگ 20 لاکھ جمع ہونے والے ہیں، یعنی 80 لاکھ، اور دلی میں 20 لاکھ جمع ہونے والے ہیں، یعنی 1 کروڑ لوگ ہو گئے جی، 1 کروڑ ہو گئے جی۔ اب 1 کروڑ لوگ ویسے جمع ہوں گے جن کا وضو بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وضو سے ہوں گے، باوضو ہوں گے 1 کروڑ لوگ۔ ہاں ہاں ہاں، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات۔ باوضو ہوں گے، اور جو ان میں بیان کرے گا وہ بھی باوضو ہوگا، سبحان اللہ۔ اور بالکل پاک و صاف ہوں گے، اور ایک دم کہیں جا نہیں سکیں گے، بالکل پاک و صاف جگہ سنیں گے وہ، بالکل وہ بیان۔ ماشاء اللہ، میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟
जी जी बिल्कुल समझ में आई, बहुत बहुत खास बात है। मेरी बात ये है कि आप अभी 1 करोड़ रुपए सहारनपुर वालों से इकट्ठा करो, तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में आपको 2 महीने लग जाएगा, बड़ी मशक्कतें बर्दाश्त करोगे, तब जाके 2 लाख पब्लिक जमा हो पाएगी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हर सहारनपुर में 4 लाख आदमी जुमे में आपको मिल रहा है, सूरत में मिल रहा है, बम्बई में मिल रहा है, दिल्ली में, हर शहर में मिल रहा है। आप इसको क्या पैगाम दे रहे हैं इमाम लोग? वो बगैर बुलाए आ रहा है और बावजूद बैठा हुआ है, वो कहीं जा नहीं सकता, उठ के भी नहीं जा सकता, नमाज पढ़ के जाएगा। हाय 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 हाय, समझ में आ गया मेरा फलसफा? समझ में आ गया कि इस तरह से 10 लाख सूरत में जमा हो रहा है, अहमदाबाद में 20 लाख बम्बई में। ये तो सुन लीजिए जरा मेरी बात। बताइए, हर जगह जुमे में जमा हो रहा है कि नहीं? आदमी बगैर बुलाए आ रहा हो, बावजूद बैठ रहा है। तो अगर इमाम चाहे तो उसको ऐसा पैगाम दे दे कौम को कि हर जुमे में इंकलाब आ जाए, अपनी मर्जी से आ रहा है। और अगर इमामों की मशवरा हो जाए तो हर जुमे में कोई ऐसा पैगाम पहुंचे कि लोगों में इंकलाब आ जाए। हर जुमे में आदमी आता ही आता है, शराबी शराबी हर आदमी आता है। किसी भी तरह की दूसरी तबलीग की जरूरत नहीं पड़ने की, कोई तबलीग की जरूरत नहीं। ये इमाम ही कर देंगे साहब, जुमे में तो आदमी कहीं जा भी नहीं सकता। हाय 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 हाय, जुमे में भाग भी नहीं सकता, जैसे जलसे में तो उसके भी भाग जाएगा, जुमे में कहाँ भागेगा? और जुमे में जितने भी लोग हाजिर होते हैं वो निहायत पाकीज़ा हालत में होते हैं। पाकीज़ा बाबू बैठते हैं। उनकी तमाम उनकी दिली और दिमागी तवज्जुहात वो बिल्कुल साफ होती है, शैतानियत से पाक होती है। अच्छा, उधर तवज्जो भी पूरी इमाम के ऊपर रहती है तकरीर करने, क्योंकि आधे घंटे की तकरीर होती है तो पूरे ध्यान से सुनता है वो। जी 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 जी। तो उस वक्त अगर इमाम, हर जगह के इमाम मशवरा कर लेना, जैसे भोपाल के, इंदौर के, अलग अलग जगह मीटिंग की, भाई हमें एक पैगाम कुछ ऐसा देना कौम को जिससे कौम में इंकलाब आए, तब्दीली आए, कुछ तो फर्क पड़ेगा साहब। कहने सुनने से फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, लाज़मी पड़ेगा भाई, लाज़मी। कुरान में है फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, बेशक जिक्र मोमिनों को नफा देता है। बेशक 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 बेशक। लेकिन ये काम बरेलवी इलाकों में तो होता है तकरीर का, लेकिन देवबंद वाले इलाकों में कम होता है तकरीर का। बहुत कम होता है, तकरीबन ना के बराबर होता है। आपके पावनपुर में हाँ ना के बराबर है देवबंद के इलाकों में। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये सहारनपुर जो गढ़ है हमारा, देवबंद का इलाका है ये हमारा, मैंने इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मैं लफ्ज़ बेकार है, मेरे रब ने मुझे, मेरी जो दिली ख्वाहिश थी और बेचैनी और कर्ब था मुझे, अल्लाह ने मुझे सुकून अता फरमाया कि मैंने तकरीबन 5 मसाजिद में ये राइज करा दिया वाक़या। हाँ नहीं, बहुत अच्छा किया था, बहुत बढ़िया किया आपने। हाँ नहीं, हमारे यहाँ भी तकरीर, हमारे यहाँ देवबंद का इलाका है, लेकिन मुश्किल से 5 मस्जिदों में तकरीर होती है और 30 या 32 मस्जिदों में जुमा होता है। मैं देवबंद वालों में माहौल ही नहीं है, तकरीर का जबकि जरूरी है, जुमे में तकरीर होना चाहिए। जी जी जी। महल्ला, यहाँ सहारनपुर में महल्ला काजी की जो मस्जिद है, तकरीर करना जरूरी है जुमे में, वही बात। जी 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 जी। नहीं, देवबंद वालों ने कैसा वो तहरीक चलाया कि तकरीर करें, बड़े आलिमों से बात करके कि साहब आप ये तकरीर शुरू करवाएं देवबंद के इलाकों में जुमे के अंदर। जी 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 जी। क्यों नहीं करते? बरेली तो हर मस्जिद में करता था, बरेली की कोई मस्जिद खाली नहीं रहती इसमें तकरीर नहीं है। बल्कि बरेलियों में तो एक शर्त है, तकरीर नहीं करेगा तो इमाम ही नहीं रखेंगे। यानी उनकी शर्त है कि कैसी तकरीर करो, चिल्लाओ, जैसे भी है तकरीर करो। भाई आधे घंटे पब्लिक पहले आ जाती है तो कुछ तो सुनाओ उनको। जी जी। अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो सबसे खतरनाक तरीन मसला है, उसके ऊपर भी आपकी डिबेट होनी चाहिए अक्सर लोगों से। ये 2 पॉइंट मजबूती से पकड़िएगा आप। नंबर 2 जो है, हर तरह की ज़कात, खैरात और सदक़ात, इसका सही इस्तेमाल जो कुरान और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहुंचाया है उसके मुताबिक होना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान इसी वजह से हो रहा है। ये सही बात है, बिल्कुल ज़कात सदक़ात का सही इस्तेमाल कुरान में है भी, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल-मसाकीन वल-आमिलीन। कुरान में तो सब उसके बारे में है कि किस जगह तमाम वो मद उसके अंदर लिखी हुई है कि किसी 8 तरह की शराइत है कि यहाँ कुरान में है ना, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वल-ग़ारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह। जी बिल्कुल, मेरे सामने हम जिस मदरसे से हाफिज बने आप उसी मदरसे में बैठे हैं। अब ये नया बन गया, वहाँ पर वो 1 पैसा भी ज़कात नहीं लेते थे, न चंदा करते थे। जी 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 जी। यानी मेहनत से पढ़ाते थे, 10 रुपए महीना तो जमाने जो हम पढ़ते थे आज से 35 साल पहले। जी जी जी। तो अभी भी इनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है चंदा लेने का, अभी भी फीस से ही पढ़ाते हैं। बाकी और जगह तो लेते हैं चंदा, लेकिन इस मदरसे में निजाम नहीं है।
हाँ 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 हाँ। यहाँ पर जैसे अभी खाने का हुआ तो महंगाई बढ़ गई थी, 2000-3000 हो गया था वो बच्चों के रहने के साथ में खाने का। जी जी लेकिन जी जब हम पढ़ते थे 10 रुपए महीना था। जी 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 जी। तो उसका असर बाकी है ना उनकी औलादों में कि ये भी हलाल रोजी की तरफ ही ध्यान है और जी ऊंची जी जहन रखते हैं। तो जब हलाल खाता है तो जहन ऊंचा होता है, हाँ जहन दिमाग ऊंचा हो जाता है। हराम खाएगा तो जहन दिमाग फिर हर कुछ हो जाता है। जी जी जी। जैसे पाके वाले ने, आपने सुना होगा, एक सेब ही तो खाया था, बड़े पीर साहब के वाले ने कितना बड़ा सफर फरमाया था। जबकि वो सेब खाना हराम नहीं था, नाजायज नहीं था, कहता हुआ था, वो किसी का उठा के भी नहीं खाया। लेकिन हजरत को फिक्र थी, बड़े पीर साहब आज को किसी का पेड़ होगा मैंने खा लिया। अब बताओ कितने बड़े वली पैदा हुए आज दुनिया में, नाम है हजरत शेख अब्दुल कादिर जी जी। यानी इतनी परहेजगारी थी। अब तो सीधा सीधा हराम खा लेता आदमी, क्या इनके अंदर साफ तकवा है। बताइए कोई एक ऐसे आलिम बता दो आपके जो सोच समझ के रोजी खाते होंगे, इसकी पैसा कैसा है। जी जी। वो पहले वाले थे, आपके जमाने में देखेंगे, आपने बचपन में देखेंगे, पहले थे ऐसे लोग। हाँ 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 बिल्कुल देखे थे। अब वो जब उम्र आपकी 20 साल थी जब होंगे ऐसे लोग, अब तो मुश्किल से मिल रहा था। जी जी जी। अब तो दावत दे दो कहीं भी चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, खा लेते हैं। जी जी जी। जबकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन, ए ईमान वालों पाक चीजों में से खाओ। और रसूलों को भी अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबात, ए रसूलों पाक चीजों में से खाओ। और ईमान वालों को भी अल्लाह ने फरमाया। जी जी जी। इससे हलाल रोजी की ताकीद मालूम होती है कि अल्लाह ने रसूलों को भी फरमाया और ईमान वालों को भी फरमाया। अरे ज्यादा हम हलाल तो नहीं खा सकते आज के जमाने में, प्योर तो हलाल हम नहीं खा सकते, लेकिन किसी कोशिश तो करें कि ज्यादा ज्यादा हलाल खाएं, क्योंकि अब तो हलाल से हराम से बचना बहुत मुश्किल बात है। अल्लाह के रसूल। लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मिलावट होगी तो अल्लाह माफ फरमाएगा। आज के जमाने में इतना ही बहुत है कि थोड़ा बहुत अगर कहीं से मिलावट में है, लेकिन बंदे की कोशिश है कि हम हलाल ही खाएं, तो वो तो मिलावट वाला तो मिलेगा ही साहब इस जमाने में। अब बिना मिलावट का तो मिलना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्योंकि कोशिश ये रहे कि हम खुला हुआ हराम रखा है, जुए का, सट्टे का, सूद ब्याज का, शराब का, ऐसी खुली कमाई से तो बचे। अब बाकी प्योर हलाल तो अब आप जानते हो जमाने में तो बहुत मुश्किल बात है। इसमें कोई दो राय नहीं, बात सही है। तो एक मैंने देवबंद का एक वाक़या सुना था, कोई मियाँ जी साहब थे, घास का, वो आप सुना होगा आपने भी, घास बेचते थे जी। वो थोड़ा बहुत इकट्ठा करके साल में एक बार दावत करते थे आलिमों की। तो सुना है कि उनकी दावत के लिए आलिम लोग वो रहते थे, इंतजार में रहते थे कब वो दावत करें। उनकी हलाल रोजी का ये असर था। देवबंद में जैसे एक साल में एक बार दावत करते थे, तो जब उनका खाना आलिम खा लेते थे बताते थे कि हमारे जो जहन में इश्कलात होते थे, कुछ जो उलझने होती थी, वो खत्म हो जाती थी उस खाने की बरकत। बेशक बेशक। अब बताइए आप कितनी बड़ी सिफत थी, यानी ये हलाल रोजी की बरकत। वो देवबंद में थे, कोई मियाँ जी नाम था, घास बेचते थे, साल में इकट्ठा करके एक बार दावत करते थे। ये सब मुझे बताया कि आलिम दावत करते हैं, इंतजार में रहते हैं कब वो दावत करे। जहन में जो कुछ हदीस समझने इश्कलात रहते थे ना, हदीस या कुछ, तो वो इश्कलात दूर होते थे उस खाने की बरकत से, यानी दिमाग रोशन हो जाता। अब अंदाजा लगाओ आप। और आपने तो बहुत वाक़या सुने होंगे जमाने में, आपकी उम्र जब 20 होगी तो कैसे कैसे। अरे साहब भरा पड़ा है दिल और दिमाग के अंदर। तो 2-4 बताओ तो सही, वो भी अपन डलवा देंगे उस्तादों के, आलिमों के। इस वक्त मैं फोकस किए हुए नहीं हूँ, इस वक्त तो मैंने सिर्फ इन 2 बातों को फोकस कर रखा है जिसके बारे में मैंने आपसे अर्ज किया है। एक तो ये खुतबात जुमा और ईदैन के, और दूसरे ज़कात और सदक़ात वगैरह की जो रकूमात या जायदादें हैं उनका सही हकदारों तक पहुंचाना। और सही हकदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर करीबी कराबतदार अजीज रिश्तेदारों के अंदर जरूरतमंद है तो बगैर ये कोई सदका या कोई खैरात या कोई ज़कात नहीं है, उसकी जरूरत को पहले पूरा करेंगे आप। जो आपके सगे निहायत करीब तरीन रिश्तेदारों के अंदर जरूरतमंद मौजूद है, चाहे वो आपके सगे भाई हो, बहनें हो, चचा हो, ताया हो, खाला हो, फूफी हो, मामू हो, या इनकी औलादों में कोई हो, उनके अंदर कोई जरूरतमंद मौजूद है, उसको आप लांग के अगर किसी और को देंगे तो नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम होना तय है। बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ ज़कात सस्ता ही है, जो बाहर के चंदे वाले आते हैं उनको देने ही बंद कर दो। बिल्कुल हर जगह बोर्ड लगा दो मस्जिद में, बाहर वालों को बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिर्फ इलाके वालों को।
फिर तो मजा आ जाएगा साहब। पब्लिक का जो पैसा आपका जो वो आपका जो वो है ना फिक्र, वो भी पूरी हो जाएगी। जैसे सहारनपुर वाले कहते हैं कि सिर्फ सहारनपुर वालों को ज़कात मिलेगी, मदरसे बाकी दूर वालों को नहीं मिलेगी। तो फिर समझ लो ये आने ही बंद हो जाएंगे चंदे वाले। अरे साहब ये बैंक के भर रहे हैं चंदे वाले, फर्जी। 1 लाख का खर्चा होता है, 50 लाख करके 49 लाख जमा करते हैं। अरे साहब 2 बच्चों को 2 लोगों को पढ़ाने रख देते हैं और 10-20 बच्चे इकट्ठे कर देते हैं, कहते हैं दारूम चल रहा है। दारूम चल रहा है। बिहार से आ रहा है यहाँ चंदा लेने, एमपी में काय को आ रहा हो भैया? बिहार इतना बड़ा, यहाँ से चंदा लेने आ रहा हो तुम? एमपी में राजस्थान में क्यों आ रहा हो तुम चंदा लेने? सहारनपुर में जो मैं अपनी आंख से देख कर आया हूँ, तकरीबन 22-23 मदरसे मेरे बहुत कुर्ब जवार में मौजूद हैं, जिसमें बहुत मोटा पैसा खर्च हुआ है और किसी काम में नहीं आ रहे, बंद पड़े हुए हैं बिल्कुल। उसमें बेहतरीन किस्म की यानी एक से एक तरफ लगा रखे हैं, बेहतरीन कमरे बने हुए हैं और 1-2 बच्चा वहां आता जाता दिखाई दे और बाकी बंद पड़े रहते हैं। वो निजी जायदाद की तरह से उसको बना रखा है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं। आप देखो, और निजी जायदाद के ऊपर बात मुझे याद आ गई सर सैयद साहब की। सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जब मदरसों की बात, जब वो तो थे नहीं जमाने में, कम थे, तो हजरत सर सैयद अहमद खान इमाम अहले सुन्नत हैं, उन्होंने कहा कि ये जो मदरसे बना रहे हैं अपनी जायदादें बना रहे हैं। उस जमाने में कह दिया था, उस जमाने जबकि इतना मकरू फरेब नहीं था उस जमाने में, 100 साल जब कह गए ताजदार अहले सुन्नत हजरत सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह। बस सर सैयद अहमद खान साहब वो आशिक़ रसूल थे, उन्होंने खुतबात अहमदिया किताब लिखी थी जो हुजूर की शान के में गुस्ताखी की थी ना अंग्रेज ने, तो आपने ही सबसे पहले किताब लिखी थी, इसका नाम है खुतबात अहमदिया। अपना सरमाया बेच के उसको छपवाया था। जी क्योंकि अंग्रेजी वही जानते थे, तो अंग्रेजी में लिखी थी आपने खुतबात अहमदिया। जी। अब गलतियां तो हुई हैं साहब उनसे, गलतियां के साल नहीं, कुछ गलतियां हो गई होंगी। हम लोग कहते हैं ऐसा वैसा होता है उनका। वो तो आज के दौर में भी तो चल रहा है, बहुत से आलिमों पे फतवे लगे थे, कौन मानता है? लेकिन खुला कुफ्र नहीं किया साहब उन्होंने। नमाज से इनकार नहीं किया, रोजे से नहीं किया, ज़कात से नहीं किया, कुरान से इनकार नहीं किया। कोई कहता फरिश्तों से इनकार किया, आप किस माने किया वो जाने, अपन तो ये जानते हैं कि वो इतना बड़ा काम किया। वो खुला कुफ्र नहीं है, इतना बड़ा कुफ्र नहीं है कि जिससे बहुत, जैसे नमाज का इनकार, रोजे, ज़कात या अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी नहीं मानते हो, ऐसा कुफ्र नहीं है साहब। ऐसा है। और ऐसे कुफ्र तो जो आजकल जमाने में बहुत से लोगों पे फतवे था कुफ्र के। अल्लामा ताहिर काजी को बरेली वाले काफिर मानते हैं, और इसके अलावा इलियास काजी दास्तानी के ऊपर है, इसने 1283 में कहा कि हम ईद क्यों न मना, जामे नहीं में मुरादाबाद से इस पर कुफ्र का फतवा लगा है। ऐसे तो कोई ना कोई पे लगे ही हैं साहब फतवे, क्या किया जाए। असल में ये 2 जो उमूर हैं जो बुनियाद हैं इस्लाम की हिफाजत के और इसके फरोग के, जब उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, एक तो ज़कात, खैरात, सदक़ात का गलत इस्तेमाल, दूसरे मसाजिद के अंदर खुतबात का ना होना और उस ज़बान में होना जो एक लफ्ज़ जिसके समझ में ना आ रहा हो। नहीं, आप सहारनपुर में रहते हैं तो आप थोड़ा बड़े उलमा से राब्ते में, तो उनसे कहें कि देवबंद वाले इलाकों में जो जुमे में खिताब नहीं होते वो खिताब करें और प्लानिंग से करें, मशवरे से, आधा घंटे के लिए। मैं तो भोपाल में भी खिताब नहीं होते साहब, ना हमारे यहाँ सिरोंज में होते, सिर्फ 3-4 मस्जिदों में होते हैं, नहीं तो होते ही नहीं है। एक बड़ी फाटक वाले हैं वो हमारे यहाँ, वो तो करते हैं, उनको हज़रत मेरा मुफ्ती अली अहमद साहब हैं, उनके खानदान के लोग करते हैं बस ताज मस्जिद में, बाकी और मस्जिदों में सिलसिले नहीं हमारे यहाँ, जबकि 30-32 मस्जिदों में जुमा होता है। जी। जबकि होना चाहिए 15 मिनट हो या आधा घंटा हो, वो भी मशवरे से खिताब हो कि हमें ये बयान करना है। जी। यानी कुछ 1-2 बातें तो मशवरे से होना चाहिए उसमें, बाकी तुम कुरान हदीस बयान करो, कुछ 2-1 बात ऐसी कर दो इसके कौम के अंदर इनकलाब आए, कौम के अंदर कुछ जरूरी बातें हों। क्या ख्याल है साहब? जैसे लड़कियां भाग रही हैं जो स्कूलों से, इसके बारे में कुछ मशवरा हो या ये बात बताई जाए कि आपकी लड़कियां भाग रही हैं स्कूलों से, पूरा प्लानिंग बन गया इंडिया में कि मुसलमान लड़कियों को टारगेट बनाया जा रहा है। अब उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है साहब, वो तो 1 लाख रुपए दे के दिखा के ले जाए, 2 लाख रुपए दिखा के ले जाए, चलो 2 लाख रुपए है तुम्हारे लिए मारुति है, चलो। तो आजकल तो आप जानते हैं इतना ईमान पावरफुल कहाँ है साहब कि जो लड़की न जावे। जी। इसमें भी अगर प्लानिंग हो जाए ना कि हमें अपनी लड़की को कैसे बचाएं, स्कूलों में जा रही है उनको भागने से कैसे बचाएं, तो सब हो सकता है साहब। ड्यूटियाँ लग सकती है ना, पैसेदार तनख्वाहदार आदमी मुकर्रर हो जाए, तुम्हें 20,000 रुपए देंगे, आप लड़कियों को देख रेख करना और आना ले जाना, एक स्कूल गाड़ी दे रहे हैं, सब कुछ हो सकता है। आजकल पैसे की कमी नहीं, मोटरसाइकिलें दे दें कि आपको वहाँ तक ड्यूटी है, वहाँ से वापस आना ले जाना, बस। बोलो साहब, पैसे की कमी है क्या आज के जमाने में?
इंदौर में बिल्कुल 50 कमी नहीं मोटरसाइकिल है। लोग खरीद के दे सकते हैं, तनख्वाह भी दे सकते हैं, बम्बई में दे सकते हैं, उज्जैन में दे सकते हैं, कोटा में दे सकते हैं, सब जगह दे सकते हैं अगर चाहे तो। कि ये आपको मोटरसाइकिल है, ये तनख्वाह है, पेट्रोल है, आपका काम है मुस्लिम लड़कियों की जहाँ कॉलेजों में जा रही हैं वहाँ से वापस आने तक, ड्यूटी छोड़ने तक और लाने तक की है। क्या ख्याल है साहब? मैंने आपको और एक और खास बात बताऊं मैं आपको कि जी, आज जी, जी। अहले हदीस हो जो पक्का अपने आप को मुवाहिद समझता है, या मौदूदी जमात का, वो सबसे बड़ा मुवाहिद समझते हैं दोनों लोग, अहले हदीस मौदूदी, और बरेलवी देवबंदी जो खैर नॉर्मल है। लेकिन ये मुवाहिद बनने में दो आगे हैं, एक अहले हदीस एक मौदूदी। इनकी लड़कियों की भी नमाज कदा होती है कॉलेजों में। जी जी बताइए, जी, जोहर जी। का टाइम तो कॉलेज में खत्म हो जाता है सर्दी के टाइम में, सर्दी में 3:30 तक रहता है, वो कॉलेज का टाइम 3 बजे तक है। कैसे नमाज पढ़ेगी वो? आके नहीं पढ़ पाएगी, आधे घंटे आने जाने में लग जाता है। तो हुजूर असल में ये फरमाते जो हैं जिसने बेशुमार जानबूझ कर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। आज पूरा हिंदुस्तान के आलिम इस बात से गाफिल हैं कि हमारी लड़कों की नमाजें कदा हो रही हैं स्कूलों में और कॉलेजों में, जी 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 जी। जबकि हुजूर फरमाते हैं कयामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। आज किसी भी आलिम ने, तबके के आलिम ने बात नहीं उठाई कि यार वाकई लड़कों की नमाजें कदा हो रही है कॉलेजों में स्कूलों में। हम इस बारे में कोई अपने कॉलेज बनाए या स्कूल बनाए या फिर ऐसी ट्रेनिंग दे के नमाज कदा न करें, क्या पढ़ाई छोड़ दें? क्या पढ़ाई छोड़ दें? कहते नहीं पढ़ना हमें ऐसी जगह जहाँ पर नमाज कदा हो रही है। भाई 700 जगह कुरान में नमाज का हुक्म आया और आज कितनी आसानी से लड़के नमाज छोड़ रहे हैं कॉलेज वाले। बल्कि अहले हदीस के लड़के भी जो बहुत बड़े मुसलमान बनते हैं ना, सबके लड़के जा रहे हैं वो लड़कियां, और ये परवाह नहीं है कि हम अपनी लड़की को बिठा लेंगे, भाई नमाज कदा होती है तुम घर में बैठो। सुन तो लीजिए, असल नहीं, में ऐसा कोई अहले हदीस है या कोई बड़े से बड़ा ईमान वाला है जो कहता है कि मैंने अपनी लड़की को पढ़ाना छुड़वा दिया, नमाज कदा होती है? ये तमाम गुमराह कुनिंदगान को जो ऑक्सीजन दी जा रही है वो ऑक्सीजन रोकना जरूरी है। तमाम जबकि हुजूर फरमाते हैं कयामत में सबसे पहले हिसाब नमाज का है, बाकी हिसाब बाद में होंगे, पहले नमाज का हिसाब होगा। ये बात कौन बताएगा? ये बात कौन बताएगा? किससे ये बड़े बड़े जो अकबरा हैं, अकाबिर हैं, जो माने जाते हैं, ये उठाया कि वाकई इसने जो बात बताई अतर हुसैन काजी ने कि आज नमाज कदा हो रही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है इसमें। और हर तबके के आलिम की नमाज कदा, वो बच्ची की नमाज कदा हो रही है, हर तबके के, लड़का हो या लड़की। अगर अपने कॉलेज होंगे, कोचिंग होंगे, उसमें नमाज का इंतजाम होगा, वजू खाने का इंतजाम होगा, और बच्चियां पाक साफ होकर पढ़ेंगी, कितना दिमाग रोशन होगा और कितनी बरकतें आएंगी उस जगह कोचिंग में, कॉलेज में। आपके तमाम सवालात, एतराजात और तकालीफों के जवाब जो मैंने आपको पहले दिन 3-4 मैं इंशाल्लाह बात को इसको पहुंचाऊंगा आगे। एक मुझे वो पसंद आते हैं, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब उस्तान भी है ना अक्कल कुआं में। हाँ। अरे साहब उन्होंने काम किया हिंदुस्तान, सर सैयद के बाद सानी सर सैयद है मुफ्ती गुलाम मोहम्मद उन्हें देवबंद से निकाला था इन्होंने। हाँ, देवबंद से निकाला। हाँ, सब पता है। देखो गलती तो वो तो मुझे ही मालूम, गलतियां तो होती है, उनसे भी कोई गलती हुई तो देवबंद के तलबा ने स्ट्राइक कर दी थी उनके खिलाफ। हाँ। अरे वो तो सब जगह ही है साहब, देवबंद बरेली सब में कुछ ऐसी बातें होती है। जी। कोई कहता है कि देवबंद में इंदिरा गांधी आई, तो मैं कहता हूँ कि वो बरेली में सोनिया गांधी आई थी बाकरगंज में। कोई कहता है देवबंद में मुशायरा हुआ, लड़की आई थी तो लड़के उछल रहे थे, मैं कहता हूँ बरेली में योगा हुआ, मंदिर इस्लाम में योगा हुआ। वो तो कुछ ना कुछ तो सब में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ घुस ही जाता है। अब दुनिया है, क्या किया जाए। हाँ। इसलिए वो कमी नहीं देखना चाहिए, हमें तो सोचना चाहिए इनकलाब लाने की कोशिश करें। कमी देखेंगे तो साहब फिर किसी कोई बचेगा ही नहीं, हर एक में कोई ना कोई कमी मिल जाएगी आपको। इन सारी तबाहकारियों की वजूहात को मैंने कलमबंद करते हुए तकरीबन 300 पेज में लिख चुका हूँ। वो किताब मुकम्मल होने वाली है। क्या नाम है? उसका नाम है ये मैंने निकाल ली, रूह इस्लाम वल अखलाक। रूह इस्लाम वल अखलाक। रूह इस्लाम वल अखलाक। जी। नहीं, आप छपाइए, इंशाल्लाह हम भी खरीदेंगे, जितना हो सकेगा लोगों में बांटने की कोशिश करेंगे। जरूर इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह इसको डलवा देता हूँ। ये ऑडियो लंबी हो जाएगी, 25 मिनट की लोग सुन लेंगे, ये अच्छा पैगाम है। जी। और उससे इंकलाब आएगा। कोटा में लोग सोचेंगे हाँ 1.5 लाख लोग कहाँ जमा हो रहे हैं साहब, वो चार्जों में पढ़ेंगे ना, कह रहा कि 5 लाख वहाँ जमा हो रहा है, 10 लाख, तो समझ जाएंगे कि वाकई सही कह रहा है कि हर जुमे पे लोग इतने लाख जमा हो रहा है हर शहर में। तो ये इमाम क्या पैगाम दे रहा है। अब कौम भी चाहिए, कौम इन इमामों को सुधारे कि आप फिरका परस्ती की बात नहीं करोगे, सुन्नी भाभी देवबंदी सब बालाए ताक रखो, सीधा इस्लाम का पैगाम दो। अगर देना है तो, नहीं देना है तो निकलो, घर निकलो, अपने अपने घर जाओ, चलो जाओ, इमाम से कहते अपने अपने घर जाओ। अगर तुम्हें कौम में इंकलाब नहीं लाना, घर जाओ, ये सुन्नी भाभी जाके घर में जाके करना।
रिश्तेदारियां हो गई, सब में आपस में रिश्तेदारियां हो गई। कहाँ तक ये लोग रिश्तेदारियां को तोड़वाएंगे सुन्नी भाभी कर। ये लोग, इन लोगों ने कौम के अंदर बहुत नफरत के पैदा किए मौलवियों ने, सुन्नी भाभी कर। इनसे कहिए यार जो देवबंदी देवबंद रहो, बरेली बरेली रहो, एलियादी रहे, अपनी अपनी जगह रहें, लेकिन आप ये नफरत नहीं पैदा करोगे। कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता, सबके अपने अपने मजबूत किले हैं, देवबंद वालों का भी, बरेली वालों का भी, अहले हदीस का भी। न कोई जो है कि देश अफगानिस्तान को खत्म कर सकता, न नेपाल को खत्म कर सकता। ये कमजोर मुल्क हैं, इनको लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे खत्म हो जाएंगी सब जमातें एक दूसरे की। हाँ, कम हो जाती है तादाद, किसी की कम हो गई, कहीं किसी की बढ़ गई, कहीं किसी, यही हो रहा है इस जमाने में। हम तो देख रहे हैं कहीं देवबंद वालों की बरेली वालों कब्जा कर लिया, बरेली वालों की देवबंदी ने कब्जा कर लिया। इससे फायदा क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं डलवा दूंगा पैगाम, फिर बात करेंगे बाद में इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है।